immunology as well as other immunotechniques such as ELISA or RIA. Okay, so you all know that what is antibody. Someone please define what is antibody. Antibody is a glycoprotein molecule that is generated in the immune response when a foreign particle in our body. Yes. So earlier I have told you that antibodies are two type, right? One is monoclonal and another is polyclonal. Okay. So इसका definition क्या होगा? What is monoclonal antibody? Monoclonal antibody is specific for a specific type of epitope that is produced from a single specific clone of cell. Okay. And what is polyclonal antibody? Polyclonal antibody के केस में क्या होता है? Basically, polyclonal antibodies are derived from different cell lines, right? They are derived from different cell lines, right? So monoclonal antibodies are the antibodies, they are identical because they are produced by one type of immune cells. Okay, and polyclonal different cell lines. Polyclonal means different cell lines. So you know that what is FAB, what is FC. What is FAB? AB का मतलब क्या है? Fragment of antigen binding. एंटीजन बाइंडिंग. C के मतलब क्या है? Crystallization. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइन फ्रैगमेंट, राइट? So this is FC region. It is specific for other biological activities, right? Example. Hmm? की क्वेश्चन है वो? यहाँ पे FC बहुत अलग अलग जो बायोलॉजिकल फंक्शन है FC का, FC पार्ट का, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, दो एक एग्जांपल बता दो. ওই অপসোনাইজেশন অ্যান্টিজেন ডিপেন্ডেন্ট সাইটোটক্সিसिटी যেটা হয়। तो FC के बस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तो ये एक्टिव कर रहा था. यस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तो यहाँ पे बाइंड कर रहा था, राइट? Yes or no? So you know that what is antibody, what is monoclonal antibody, and what is polyclonal antibody. ठीक. So monoclonal antibodies are antibodies that are identical because they are produced by the one type of immune cells and all clones of a single parent cell. But polyclonal antibodies, they are derived from different cell lines. We have already discussed. And here they differ in amino acid sequence also. So produced by B cell clones and monoclonal many B cell clones, it is produced by single B cell clone. Okay, bind to multiple epitopes of all antigens used in the immunization. A single epitope of a single antigen के साथ इसका bind होता है. Antibody class, a mixture of different antibody classes, मतलब isotypes. Isotype क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ, isotypes क्या होता है? of antibody that is differ in their region. तो बोल दो कौन कौन सा आइसोटाइप है? IG or IgG, IgA यस, isotype. यस. ऑल ऑफ ए सिंगल एंटीबॉडी क्लास, एक सिंगल टाइप का एंटीबॉडी के क्लास में होता है, ठीक है? एंटीजन बाइंडिंग, अ मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. ऑल एंटीबॉडीज हैव द सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है? तो पोटेंशियल ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी इसका बहुत हाई होता है, इसका मोनोक्लोनल के केस में लो होता है. तो ये इसका खासियत है कि इसका क्रॉस रिएक्टिविटी जो है बहुत लो होता है, ठीक है? तो हिस्ट्री अगर थोड़ा सा देखा जाए हिस्ट्री के केस में, सो इन 1890 Von Behring and Kitsato, they discovered the serum of vaccinated persons contained certain substance which is known as antibodies. Okay, and then earlier
90s, okay, earlier 19th. So Eldridge proposed the side chain theory. 1995 In 1995, Jimmy postulated natural selection, clonal selection theory, and Frank McFarlane they expanded this theory. Okay, and almost the same time, Porter isolated fragment of antigen binding site FAB and FC. Okay, from rabbit gamma globulin. In 1964, Littlefield developed a way to isolate hybrid cell from two parent cell lines using hat medium. Okay, using hat medium. Do you know what is hat medium? Here, hypoxanthine aminopterin thiamidine. ओके, तो ये मीडियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हाइब्रिडोमा टेक्निक के लिए. ठीक. देन इन 1975, कोलर एंड मिलस्टेन they provided the most outstanding proof of that clonal selection theory by the fusion of a normal and a malignant cell. Okay, and this resulted in the first monoclonal antibodies, and for which they received Nobel Prize in 1984. So Milstein produced the first monoclonal antibodies. ये याद रखना, ठीक है, मिलस्टेन. तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी हो गया. So what disease to target and how in case of monoclonal antibodies? Cancer cells express a variety of antigens that are attractive targets for monoclonal antibody based therapy. Okay, so the development of monoclonal antibodies against specific targets has been largely accomplished by immunizing, basically laboratory they used mice. Okay, so they immunized mouse against human tumor cell and screening the hybridomas for antibodies of interest. Okay, so here you can see that the monoclonal antibody is a single type of antibody that are identical. We have already discussed. So a hybridoma cell, we also know that, and some myeloma cells synthesize a single monoclonal antibodies naturally. Okay, so इसमें क्या होता है? Yes, क्या? ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, तो बताओ पहले. तुम लोग ऐसे बैठे रहेगा ना. बाकी लोग कैसे क्लास कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है अब? Yes, sir. Note down. I will not repeat. Note down. चलो नोट डाउन करो जल्दी जल्दी. हो गया ये पोर्शन?
डोंट वरी, आई विल बी सेंडिंग यू. थोड़ा सा हिस्ट्री का बात बताया था. ठीक है. So here are some definition. Okay, now मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन मेथड. तो कैसे ये जो सिस्टम है इसका प्रोटोकॉल क्या है, कैसे ये हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. सो द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन 1975. ओके, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस, थेरेपी एंड रिसर्च, एंड ऑल्सो इन कैंसर immunology. Okay, it is still largely dependent upon the animal testing, however, because it requires immunization of mice in order for them to create the antibodies to be grown. Okay, तो इसके लिए सेल लाइन चाहिए होता है, राइट? यू नो दैट व्हाट इज सेल लाइन. ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कैसे. ओके, तो यहाँ पे माइस है. ठीक है, तो माइस को क्या किया गया है, इम्यूनाइज किया गया है. ठीक है, तो इसके बी सेल, एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल, बी सेल, इसके साथ एक ट्यूमर सेल, इसको कल्चर किया गया है कल्चर मीडियम में. ट्यूमर सेल को कल्चर किया गया है. उसके बाद ये जो दो सेल है, बी सेल एंड द ट्यूमर सेल, इसको फ्यूज किया गया है आर्टिफिशियली. इसको फ्यूज किया गया है. फ्यूज होने के बाद ये जो सेल है, तो एक कैंसर सेल के साथ एक नॉर्मल सेल, इसका फ्यूजन के बाद वो जो नया सेल बनते हैं उसका नाम है हाइब्रिडोमा. क्या नाम है? हाइब्रिडोमा. और ये फ्यूजन मेथड अर्लियर इट वाज डन बाय सेंडाई वायरस, बट लेटर पीजी, पॉलीइथिलीन ग्लिसरॉल, ये ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, तो अर्लियर सेंडाई वायरस एंड देन लेटर पेग. ओके, तो उसके बाद फ्यूजन के बाद क्या होता है, कुछ इसका जो सेल का प्रॉपर्टी है, बी सेल एंड ट्यूमर सेल, ये मिक्सड अप हो जाता है. ठीक है, तो इसका एक नया प्रॉपर्टी आ जाता है, उसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे. ठीक, तो तीन अलग अलग टाइप का सेल, जो ट्यूमर सेल है वो एक मीडिया में दे देता है इसको, तो जिसके थ्रू ये कैंसर सेल डाई हो जाता है. उसका नाम है हैड मीडियम. ठीक, कैंसर सेल डाई हो जाता है. बी सेल का नॉर्मल एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो उसका डेथ हो जाता है. उसके एंड हाइब्रिडोमा जो सेल होता है, वो तो कैंसर के जो सेल है वो कैंसर की जो प्रॉपर्टी है इमॉर्टल. कैंसर को इमॉर्टल क्यों बोला जाता है? व्हाई? हाँ, क्यों बोला जाता है? बोलो. बहुत खराब सिचुएशन में हो तुम लोग. कैंसर को इमॉर्टल क्यों बोला जाता है? हाँ, क्यों बोला जाता है इमॉर्टल? हाँ, एपोप्टोसिस है ना. तो क्यों नहीं होता है? सेल साइकिल है, इसमें कौन बैठा रहता है सेल साइकिल के बीच बीच में? चेक पॉइंट. तो चेक पॉइंट. चेक पॉइंट इसको चेक नहीं कर पाते. ठीक, तो इसके बाद बी सेल, उसका तो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, वो डेथ हो जाता है. लेकिन कैंसर सेल का जो प्रॉपर्टी है वो है इमॉर्टल, और ये हाइब्रिडोमा सेल एक्वायर कर लेता है, देन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है. एंटीबॉडी प्रोडक्शन किसका प्रॉपर्टी है? बी सेल का. वो इस बहुत सारे एंटीबॉडी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो वही इसमें लिखा हुआ है. द प्रीवियस पिक्चर, माउस बीइंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टारगेट एक्स. ठीक है, वो एक्स एंटीजन के अगेंस्ट उसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है. माउस has formed antibody to the X antigen and are then isolated in the mouse spleen, and monoclonal antibodies are produced by the fusing single antibody forming cell to a tumor cells, जो कि हम लोग देखे हैं. The resulting cell is called now hybridoma, and the hybridoma cells are continuously growing cell lines generated by the fusion of a myeloma cell and a normal cell. They are capable of producing antibodies. So each hybridoma will produce relatively large quantities of identical antibody. Why? वो तो इमोर्टल है. ठीक,
सो इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे एंटीबॉडी हमको मिल सकता है, ठीक है। तो इम्यूनाइज माउस, स्प्लिनोसाइट्स, माइलोमा सेल्स जो कि HGPRT माइनस मतलब म्यूटेंट है। उसके बाद फ्यूज़न क्या है, ठीक, फ्यूज़न होने के बाद किसके थ्रू, पेग, उसके बाद हैट मीडियम में दिया हुआ है, हैट मीडियम में दिया होने के बाद वो कैंसर सेल उसका ख़त्म हो जाएगा, केबल उसका जो है हाइब्रिडोमा सेल वो ही रहेगा, ठीक है, क्लोन हाइब्रिडोमा सेल। तो उसके बाद वो हाइब्रिडोमा सेल से हम लोग क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज़ है वो हम लोग उसके साथ वहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ उसका प्रोटोकॉल्स है। इम्यूनाइज एनिमल, आइसोलेट स्प्लीन सेल containing antibodies producing cell, फ्यूज स्प्लीन सेल विद माइलोमा सेल, वही बात, ठीक है, वही बात घुमा फिरा के है, ठीक। वही दिया हुआ है और इस सिचुएशन को बोला जाता है क्या, हेटेरोकैरियंस, ठीक है, क्योंकि वो वी सेल एंड माइलोमा सेल उसको दोनों का फ्यूजन हो रहा है तो उसका नाम है हेटेरोकैरियन, ठीक है, हेटेरोकैरियन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिड टाइप्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, डिफरेंट टाइप्स, ह्यूमनाइज्ड, पैरामीटराइज्ड, तो डिफरेंट के केस है, काइमेरिक मतलब दो अलग अलग। तो ये डिफरेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के केस में जो कि हमारा इस टॉपिक में नहीं है, ठीक है। दो एक इम्पॉर्टेंट जो है जैसे रिटुजिमैप, रिटुजेंस, ये है वन टाइप ऑफ काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इसका पर्टिकुलर मॉलिकुलर मार्कर रहता है, ठीक है, और उसका टारगेट भी डिफरेंट होता है, उसका टारगेट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये मेथड क्यों फॉलो किया जाता है, इसको वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्यों फॉलो किया जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डायग्नोस्टिक पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज ट्रीटमेंट के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी ओनली आफ्टर 14 days after conception, and other monoclonal antibodies allow rapid diagnosis of hepatitis, influenza, herpes, streptococcus, and chlamydiasis. Okay, they can be used to detect for the presence and quantity of the substance, and for that instance in a western blot test, okay, or immunofluorescence test. So limitation with mouse monoclonals, problem in the medical application that the standard procedure producing monoclonal antibody yields mouse antibodies and which could be rejected by human immune system. graft rejection हो सकता है और एलर्जी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मोनोक्लोनल थियरी वगैरह वो है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एज वेल, दीज आर द साइड इफेक्ट्स, चिलिंग वगैरह, फीवर, वीकनेस, हेडेक, दीज आर द साइड इफेक्ट, ओके। नाउ कम्स टू द हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, ये कैसे फॉलो किया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, हम लोग डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम लोग बात किए हैं कोहलर एंड विल्स्टन के बारे में, इसके जो नोबेल प्राइज मिले थे उनके, ठीक है। सो बी lymphocyte can mutate into a tumor cells and that result in type of cancer that is known as myeloma. B lymphocyte cancer. Myeloma cell immortal and will grow indefinitely in culture. Fusion of a single activated B cell and a myeloma cell will create hybridoma that grow indefinitely in culture. Okay.
here it grow antibody, secret antibody, but don't grow in the tissue. These myeloma cells different, grow indefinitely in cell culture but don't secret desired antibody. तो फ्यूज किया जाता है इसको, वो हो जाता है क्या, हाइब्रिडोमा. ठीक, ग्रो इंडिफिनेटली एंड सीक्रेट एंटीबॉडी. उसके बाद एंटीबॉडी को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है बी सेल द्वारा. म्यूटेंट HGPRT. ठीक है, इसको सैल्वेज पाथवे जो है वो ऑलरेडी ऑफ हो जाता है. तो दो पाथवे है, एक है सैल्वेज पाथवे, एक है डी नोवी. तो ऑलरेडी HGPRT माइनस मतलब म्यूटेंट है, मतलब है इसका सैल्वेज पाथवे ऑलरेडी नहीं चल रहा है. ठीक, तो सैल्वेज पाथवे नहीं चल रहा है मतलब डी नोवो इसको ऑन है और इसका सैल्वेज एंड डी नोवो बोथ ऑन है. सैल्वेज एंड डी नोवो बोथ ऑन है. लेकिन ये हैड जो मीडियम है, ठीक है, हाइपोजेंथिन एमिनो ये मीडियम है, ये किसको ऑफ कर देता है, डी नोवो सिंथेसिस का ऑफ कर देता है. वो ऑफ करने के बाद तो कैंसर सेल इसका जो है वो कैंसर सेल तो सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि खाली डी नोवो पाथवे ये चल रहा था इसको यहाँ पे. लेकिन जो इसका है हाइब्रिडोमा सेल, इसका डी नोवो भले ही वो खत्म हो चुका है लेकिन सैल्वेज पाथवे वो इसका चालू रहेगा बी सेल की पॉवर्टी, और बी सेल उसका नॉर्मल डेथ हो जाएगा. बी सेल का नॉर्मल डेथ हो जाएगा. उसके बाद हाइब्रिडोमा सेल के द्वारा हम लोग एंटीबॉडी वैसे कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो पॉसिबल फ्यूजन प्रोडक्ट देखो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है. माइलोमा जो है HGPRT डेफिशिएंस, ठीक है, एंड IG डेफिशिएंस वो कुछ एंटीबॉडी वो सीक्रेट नहीं करेगा. ठीक है, हैट मीडियम यहाँ पे दे रहा है तो खाली हैट मीडियम के ये जो बी सेल्स है ये नेचुरल इसका डेथ हो रहा है. हैट सेल के द्वारा ये इसका ये चलता रहेगा. ठीक है, कैन यूज सैल्वेज पाथवे. सॉरी मैं वहाँ पे डी नोवो उसका HGPRT माइनस मतलब डी नोवो इसका खत्म हो चुका है तो यहाँ पे सैल्वेज पाथवे ये ऑफ कर देगा. ठीक है, सैल्वेज पाथवे ये ऑफ कर देगा. देखो, और फ्यूजन जो है फ्यूजन एजेंट वो है पॉलीइथिलीन ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, नॉर्मल टी सेल और बी सेल डाइज आफ्टर 7 to 10 days इन कल्चर, और इस स्टेट को बोलेंगे हेटेरोकैरियन. उसके हेटेरोकैरियन का नॉर्मल क्रोमोसोमल लॉस होता है और वो हाइब्रिडोमा ऐसे बन जाता है. ठीक है, ये देखो बी सेल हाइब्रिडोमा, टी सेल हाइब्रिडोमा अलग सा, तो इसका एंटीबॉडी यहाँ पे बन चुका है. ओके, और हम लोग इसको आइसोलेट कर सकते हैं. तो देखो बी सेल का जो है डी नोवो चल रहा था, सैल्वेज चल रहा था. ठीक है, डी नोवो चल रहा था, सैल्वेज चल रहा था. लेकिन माइलोमा HGPRT माइनस, ठीक है, मतलब इसका सैल्वेज गड़बड़ है. डी नोवो चल रहा था, सिर्फ डी नोवो. सेल फ्यूजन हो गया, हैट सिलेक्शन हैट मीडियम या हैट मीडियम में इसको डाला है तो माइलोमा सेल जो है इसको देखो दोनों ही पाथवे ऑफ हो चुका है. लेकिन बी सेल का सैल्वेज पाथवे अभी भी जारी है और हाइब्रिड जो सेल है इस बी सेल को प्रॉपर्टी इसमें मिला है और सैल्वेज पाथवे वायबल. ठीक, लेकिन बी सेल डाई हो जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. यस, टेल मी. বলছি ডি নোভো পাথওয়েটা বন্ধ হয় ওটা কে করে ওটা? Yes, so salvage pathway inhibited by HGPRT an enzyme and de novo inhibited by HAT hypoxanthine aminobutyl thymidine. Okay, तो हैट सिलेक्शन हैट मीडियम के देने के बाद इसका देखो इसका डी नोवो पाथवे भी ऑफ हो चुका है. ठीक है, देख रहे हैं ना, कर्सर दिखा रहा हूँ मैं. डी नोवो पाथवे इसका ऑफ हो चुका है, इसका भी डी नोवो पाथवे ऑफ हो चुका है. लेकिन सैल्वेज पाथवे जो है वो जारी है. इसके चलते ये वायबल बन चुका और बी सेल का नॉर्मल डेथ होगा. उसका सैल्वेज पाथवे तो ठीक है लेकिन वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता. विद इन 7 to 10 days इट विल डाई.
Okay, so this is all about hybridoma technology. And now tell me if you have any kind of questions, you can ask me right now. बोलो. বলছি ইথিলিন গ্লাইকোলের কাজটা কি বলে? वो फ्यूजन एजेंट, वो जो माइलोमा सेल है, जो नॉर्मल बी सेल है, उसको फ्यूज कराता है. अर्लियर सैंडाई वायरस यूज़ किया जाता था, लेकिन अब पीजी यूज करता है. ठीक.